So a very good morning to everyone. Till now, in place of supply, we have done section number 10 that was related to place of supply in respect of goods when the supply is in India, right? Then we have done place of supply of goods when supply is either export or it is either import. Then we have already done one thing, and that is section number 12, that is what service related, when the services are provided where the recipient also in India, supplier also in India, and might be sometimes service might go outside India. Itna we have done. Now tell me one thing, in respect of goods, that is section number 11, import wale case mein, would you apply RCM? Because it is again import. When you import goods or when you import service, in both the cases, is it RCM? Yes. Why? When it is import of service, so specifically RCM is given. But when it is import of goods, specifically RCM is not given over here, but in custom, you actually pay IGST under section 3, subsection 7. तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, तुमने ही मंगवाया, तुमने ही तो यहाँ पे to equate the GST in India, we have to pay custom में also IGST. ठीक है, तो बात तो वही हो गई. ठीक है. Now, अभी पहले हम क्या करते हैं, let us first complete section number 14 and then we will again revise overall place of supply. So here we will be having place of supply का revision also today. ठीक है, so that day after tomorrow we can start with the questions. And as place of supply has no amendment at all, so we can use the PDF that we are already having for Bangar. So we can use that. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारा place of supply का Bangar का question will get completed. Okay? Sure. So when it comes to your place of supply, section number 13. Now, place of supply section number 13, this will be applicable when? This will be applicable when either the recipient or the supplier, anyone, either the recipient or the supplier, anyone is outside India, then it will be applicable. Now, a logic that I want from your side, that when we were doing section number 12, जब हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे section number 12. Section number 12 में we have done GTO, right? GTO, passenger transport, goods transport, insurance, that we have done. And in specifically in this services that is related to GTO, passenger and goods transport, we have seen one thing, that either given to registered person या फिर किसको दिया गया है, या फिर ये दिया गया है to an unregistered person, that we have done. Now, if I am on section number 13, as I told कि most of the services are common. Most of the services are what? Common, whether it is section number 12, whether it is section number 13. Would I check again registered person and unregistered person also in section number 13? भाई 12 में भी सेम सर्विस, 13 में भी सेम सर्विस, नेचर ऑफ सर्विस इज सेम, चाहे वो आपका सेक्शन 12 हो या फिर आपका सेक्शन नंबर 13 हो. तो मुझे बस इतना बता दो कि whether it is 12, whether it is 13, क्या मुझे वहां पे भी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन देखना था, यहाँ भी मैं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन को चेक करते हुए चलूं? और अगर तुम बोलते हो हाँ, तो रीजन बताओ. You are saying no, then also I want the reason. The recipient, if recipient is outside India, then we need to see the supplier point of view. तो नहीं, only yes or no बोलो पहले कि हाँ देखना है या नहीं देखना. Yes, we need to see. Yes, we need to see as per Akshay. Sachin? No. Sachin says no. Jaya? Jaya जी आप अपना point of view बताएं. I think we need to see because we need to pay RCM. So for that, You need to see because you need to pay RCM. Okay. Sachin, why no?
If recipient outside India, then Hmm. If recipient outside मैम अगर India, रेसिपिएंट इंडिया से बाहर है तो हम उसे टैक्स रिकवर नहीं कर सकते। तो उससे टैक्स रिकवर नहीं कर सकते. ओके. एंड देन व्हाट अबाउट इफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया? इम्पोर्टेशन ऑफ सप्लाई होगा, आरसीएम अप्लाई होता। इंपोर्ट ऑफ होगा सचिन? मैम अंदर से तो कुछ समझ नहीं आया, पर हाँ तो बोल ही देते हैं कि होगा शायद. अब आप बोल ही रहे होता. तो अक्षय, सचिन नहीं, एंड जय नहीं. नहीं देखेंगे हम रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन. मैम अभी तो इतना हमने बोला वो वेस्ट था, बिल्कुल वेस्ट था, नहीं देखेंगे हम. अब मैम क्यों नहीं देखेंगे? अंडरस्टैंड वन थिंग कि इफ इट इज योर सप्लायर, ठीक है, अभी के लिए हम क्या मानते हैं फर्स्ट केस में, द फर्स्ट केस इज व्हेन माय सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया. मेरा पहला केस जिसमें कौन आउटसाइड इंडिया है? सप्लायर. दैट मीन्स दिस रेसिपिएंट he is in taxable territory. My supplier outside India. Now understand, when my supplier is outside India, the supplier cannot get registered. Supplier is outside India, तो वैसे भी उस पे जीएसटी लगेगा क्या? No ma'am. If supplier is outside India, no GST is applicable because it is in non-taxable territory. तो उसकी बात तो खत्म ही कर दो, whether it is registered or non-registered, because हम रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड मैम सप्लायर का तो देखते ही नहीं है इन सेक्शन नंबर 11. हम तो रिसिपिएंट का देखते थे, वेदर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड. अंडरस्टूड? सो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या करना है, सप्लायर के केस में तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का काम ही नहीं करना है, रिक्वायरमेंट ही नहीं. मैम व्हाट अबाउट रिसिपिएंट? ये रिसिपिएंट का तो मैम रिसिपिएंट इंडिया में, इसका तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देख लो ना एक बार. अब समझो एक चीज, am I talking about only service over here in section number 13? Yes ma'am, we are talking only about service in section number 13. So whenever supplier is outside India, जब भी तुम्हारा क्या है, supplier outside India है and he is giving services in India, it is always considered as what? Import. ये तो always import है. And मैम import of service तो supply की definition में covered है. Why it is covered? To apply रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. याद आ रहा है डे 1 वाली क्लासेस? व्हाई इट इज? बिकॉज वी हैव टू अप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. चॉइस नहीं है तुम्हारे पास. इट इज व्हाट? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इफ द सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड. रिमेंबर, ये तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है इफ द सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड. तो इन सच ए केस व्हेन इट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो भाई रजिस्टर ही होने वाले हो ना अगर तुम्हारी सर्विस एग्जाम नहीं है. तो हम देखें क्योंकि तुम अब भी रजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड हो के आरसीएम के रीजन से रजिस्टर्ड हो, ये सब देखने का कोई सेंस बनता है क्या? आर यू गेटिंग? सो इन सच अ केस वी विल नॉट चेक कि वो रजिस्टर्ड था रेसिपिएंट और रेसिपिएंट वाज नॉट रजिस्टर्ड. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट. वी विल डेफिनेटली, हमको पता है कि आरसीएम है. इफ द सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्टेड, in such a case, yes, mandatory registration and mandatory you have to pay the GST. Are you getting? So it is always registered person over here. या तो वो होगा अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड हो जाएगा, या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वैसे भी उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो टैक्स पे करना ही है. अंडरस्टूड दिस? ठीक है. अब ये तो हो गई एक बात, दैट इज माय सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया. नाउ सेकंड, नाउ रेसिपिएंट को हम क्या करते हैं, आउटसाइड इंडिया कर देते हैं. सप्लायर इन इंडिया and recipient
outside India. Ma'am, when my supplier is in India, and actually he is providing services from India to outside India, right? So can I say कि it is nothing but it is export? Yes, ma'am, it is nothing but it is export. And export क्या हमारा interstate transaction है? Can I say export is nothing but my interstate transaction? Yes, ma'am. तो export क्या हो गया? Interstate transaction नहीं बोलते इसको. We will say interstate supply. And remember one thing, whenever a person does an interstate supply, again पता है क्या है? Mandatory registration. ठीक है, it is what mandatory registration. तो supplier तो तुम्हारा always registered person ही होगा, always. अगर exempt नहीं है तो, if the nature of service is not exempted. So ma'am, when supplier is a registered person and it is export, तो export पे there is no reverse charge mechanism का concept. Export पे तो reverse charge mechanism है ही नहीं. There is no reverse charge mechanism का concept. In such a case, always in case of export, if the export is taxable, वैसे भी किसको पे करना है टैक्स? Registered person को ही पे करना है. तो इन सच केस तुम रिसिपिएंट को वेदर रजिस्टर अनरजिस्टर्ड कैसे देख सकते हो? बिकॉज रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, तो ये तो ऑलवेज ही अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा ना. दिस विल ऑलवेज बी अन अनरजिस्टर्ड पर्सन. आर यू गेटिंग द लॉजिक? ठीक है. सो देयरफॉर इन केस ऑफ योर सेक्शन नंबर 13, whether registered, whether unregistered, ये सारी कहानी नहीं चलेगी. Are you getting? This is the reason ये कहानी नहीं चल सकती है. Got that? Giving you only 5 minutes. Write down overall goods के सारे place of supply 10, 11, 12. इन सबके पहले place of supply के keywords लिखो. Then we will move to section 14. रफली, हाँ, बहुत ज्यादा सजा धजा के नहीं लिखना. ओनली वर्ड एंड कीवर्ड, उसका आंसर क्या होगा?
चलो stop. So Lakshmi, why you are an early bird in the class today? Sorry, ma'am, unexpectedly I snoozed my alarm. Unexpectedly you snoozed your alarm. Yes, ma'am. As I guess, yesterday till 10:45 we have taken the classes, but at your place it would be, I guess, only 9:30 something. Yes, ma'am. After that, I got to sleep a little late, around 1. I thought 10 to 15 minutes also I can slept. So I snoozed, but I got slept You again. have not Sorry. ज्यादा important नहीं छूटा तुम्हारा, बस मेन लॉजिक था वही गया है, बाकी सब तो ठीक है. So may I leave, ma'am? Will you I give me will the record an recorder? audio for you, क्योंकि उसके लिए overall recording is not needed. Give you an audio, in that you will understand. Okay, ma'am. Okay. और Abdul, everything okay? Why late? मैं भी snooze कर दिया मैम. ओहो, कितना लेट हो गए थे ना कल. हमारे बच्चों को तो आदत ही नहीं है लेट नाइट पार्टीज, लेट नाइट की तो आदत ही नहीं है उनको. नहीं मैम, मैंने आके मोबाइल में कनेक्ट किया था, लेट नहीं हुआ मैम. जो भी इम्पोर्ट और नो, तुम्हारा ना इशू होता है शायद, तुम्हारे मोबाइल से कनेक्ट करने में. तुम ये फिर दूसरे किसी उससे कनेक्ट करते हो. लैपटॉप में थोड़ा देरी हो रहा है मैम. मोबाइल में आके इजीली कनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं बिकॉज मोबाइल तुम में. लैपटॉप में हॉटस्पॉट चला रहे हो क्या साथ में? हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो क्या? नो मैम, पड़ोसन की बिल्डिंग के वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ. नो कमेंट्स. अब उसका रेंज कितना आता है दैट डिपेंड ना, कि तुम्हारे घर तक कितना अच्छा रेंज स्ट्रेंथ क्या है. पड़ोसन की बिल्डिंग बाजू You के can check बालकनी. the strength चेक कर सकते हो. पड़ोस वाले कक्का की बिल्डिंग जो है ना, उसके वाईफाई का स्ट्रेंथ क्या रहा है. चेक दैट स्ट्रेंथ. 5G अगर वो ठीक है तो इसलिए प्रॉब्लम होती है. 5G अरे बाबा, 5G तो है, तुम्हारे घर तक भी तो उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी आनी चाहिए ना. आर यू गेटिंग? चलो, कितने तेजस्वी लोग हैं. आ जाओ. Let us start with now properly section number 14, and that is the last section. अब सुनो और समझो मेरी बात. What we should do, what would be your homework actually? More important, what would be your homework? You have to create like this. What you have to do, ऐसे column create करना when you would be doing. There would be 3 columns. ठीक है. अब मैम ये 3 column क्यों है? Why this 3 columns? This 3 columns because first of all you will write here what? Particular. Ma'am, what is particular? Actually the description of section. Service की which kind of service it is. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? The type of service. अभी मत कुछ भी करना. Do not do right now. But I'm telling. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Service. And here we will write the keywords. Keywords of section number 12. And here we will write keyword of section number 13. Why so? Remember, I have told you now, in section 12 and section 13, you are having common services. So at least whatever are the common service, जो भी यहाँ पे services क्या है common है, I can write those services over here. And सामने के सामने, here I will write the keywords. So at the time of your revision, you will have a comparative analysis. What is the place of supply in section 12 and what is there in section number 13? That type of thing we have to do. Understood? And if you do this thing, I bet you section 12, section 13 बहुत ज़्यादा you will get in your head because you have a comparative analysis कि हाँ किसमें क्या लिख के रखा है. ठीक है? चलो. Starting with section number 13. What is there in section number 13?
Ma'am, as we done in section number 12, there was a general wala rule. So obviously here also there will be what general wala rule. Now what is the general wala rule over here? Place of supply of service, except the service that has been specified in all the subsections. That means my general service. It shall be always what? Location of recipient. Location of recipient, not such person. It is location of recipient. What if, ma'am, the location of recipient is not available in ordinary course of business? I don't have the location of recipient. I don't have address. Recipient outside India. मेरे पास नहीं है उसका address. I do not have the location. Then obviously it is you. Location of supply. Simple. कि अगर मेरे पास location of recipient नहीं है, if I have the location of recipient, बैंक ने recipient का location लिया, चलेगा. They are having location of the recipient की where the location of the recipient is, where he is registered or where the person is, as the case may be. But if they do not have the location, तुम खुद मान लो कि location of the supplier, that is only the place of supply. Is that clear? Now, ma'am, what about this? अब यहाँ से we will start doing the comparison. Place of supply shall be what? Place of supply shall be where the services are actually performed. Where the services are actually performed. ऐसा कहीं तो वहाँ पे भी किया था कि where the services are actually performed. वो किस केस में था? Service supplied in respect of goods. उधर था where the service is performed, you have to be present over there. यहाँ पे in respect of goods, a service has been provided for which goods need to be physically present. So service supplied by in respect of goods which are required to be physically available by recipient of the service to supply to the supplier of service or the person acting on behalf of the supplier of service in order to provide the service. समझो. The thing is, suppose मुझे क्या करना है? Suppose मुझे मेरा लैपटॉप रिपेयर करवाना है. लैपटॉप रिपेयर करवाना है. I want repair of laptop. So if you want कि your laptop should get repaired, तो obviously remote हो सकता है क्या? Possible ही नहीं है. Remote में possible ही नहीं है कि virtually they will do. So in such a case, either I will go to the shop. मैं जाऊंगी. So where the goods are, where the service is actually performed at the shop. I am not going. मैंने ऑनलाइन बुक किया कि मेरे यहाँ आके तुम सर्विस दो, मैं मेरा लैपटॉप नहीं दूंगी because it is confidential. बहुत सारी चीजें उसके अंदर. I will not give the laptop. मेरे सामने होना चाहिए सब कुछ. Now the person is coming and मेरे घर पे he is performing. That means on behalf of supplier of the service, a person is coming and providing the services. The main crux is where the service is actually performed, where goods are physically present. जहाँ पे goods हैं, वहीं पे वो service क्या कर रहे हैं? Perform कर रहे हैं. So let us check. What are the keywords? Service actually performed. तो मैम service के लिए बोला है ना कि goods should be physically available. तो जहाँ goods physically available है, वहीं तो service provide हो रही है. So basically, where the service is performed when you make physically available the goods. अब मैम वो पर्सन आ रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे कोई पर्सन आ रहा है, तो एट माई होम आई एम फिजिकली प्रोवाइडिंग द गुड्स. तो बेसिकली क्रक्स इज एक्चुअली सर्विस कहाँ परफॉर्म हो रही है, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. पॉइंट नंबर 1. अब मैम व्हेन इट वाज सेक्शन नंबर 12, वहां पे था ग्रूमिंग सर्विसेज, वहां पे था व्हाट ब्यूटी सर्विसेज. तो ये सारी सर्विस, ग्रूमिंग सर्विस, ब्यूटी सर्विस, फिटनेस वाली सर्विस, स्पेसिफिकली पर्सन शुड बी प्रेजेंट. वहां पे क्या था? स्पेसिफिकली पर्सन शुड बी प्रेजेंट. तब भी था सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म. हियर गुड्स शुड बी प्रेजेंट. हियर गुड्स शुड बी प्रेजेंट, बट स्टिल सर्विस एक्चुअली परफॉर्म. तो यहाँ पे आर यू गेटिंग? When it is section number 12, person should be present. Section number 13 में goods should be present. तो देखा जाए यहाँ difference किसमें है? It is person, it is goods. But answer is same. Service actually performed. Service actually performed. So is that clear? The difference? अभी लिखेंगे नहीं, but I am telling you.
Second, provided that it's a proviso, it is possible in many cases कि through remote location a service could be performed. कई केसेस में ऐसा होता है कि कुछ चीजों का like software issue is there, तो सॉफ्टवेयर के लिए he doesn't need to come over here, उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है. Any desk, are you getting? Any desk पे ले लेगा वो, टीम व्यूअर पे ले लेगा मुझे, are you getting? तो any desk हो जाएगा टीम व्यूअर पे. That means where the service provided are provided from remote location by way of electronic mean. By way of electronic mean, if he is providing the services, in such a case, location where goods are situated at the time of supply of service. Ultimately, location of good matter. Goods की location matter कर रही है ना, but understand, keywords are different. When it is not remote location where services are actually performed, right? अभी doubt नहीं, where services are actually performed. Second, when remote location, तो matter तो यही कर रहा है where the goods are actually at the time of service. Even though मैंने तुमको AnyDesk पे लिया, suppose software में कोई issue आया, there is an installation issue in the software, तो technology वाला बंदा क्या करेगा? Is he coming to you? नहीं. Are you coming to him? नहीं. He will say, मुझे क्या दे दो? ODesk पे दे दो, मुझे AnyDesk पे दे दो, मुझे TeamViewer पे दे दो. In such a case, remote location से he is providing you the service. But matter क्या करता है? Goods कहाँ पे actually performed है. अब मैम क्वेश्चन ये आएगा कि मैम सॉफ्टवेयर इज नॉट अ गुड, है ना अब्दुल? सॉफ्टवेयर इज नॉट अ गुड. So I can say कि सॉफ्टवेयर इज नॉट अ गुड, बट इम्पोर्टेंट क्या है? That thing कि मुझे उस पर सर्विस देनी है. Particularly at point number 1, goods should be physically present. पर जिन गुड्स को फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होता है, तो इन सच अ केस इनबिल्ट उनके अंदर कुछ दिक्कत होती है ना. आर यू गेटिंग द वर्ड्स? कि अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना, अब एक चीज बताओ, कार की रिपेयर चाहिए, रिपेयर ऑफ कार, तो रिपेयर ऑफ कार इन एनी केस, वेदर इट इज प्रेजेंट वेदर इट इज फ्यूचर, कभी भी इवन 50 इयर्स बाद भी तुम वर्चुअली क्या नहीं कर सकते? रिपेयर ऑफ कार नहीं कर सकते रिमोट लोकेशन से. बट सपोज कार इज देयर, कार के अंदर एक सॉफ्टवेयर इज देयर, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को अगर कुछ भी दिक्कत होती है, देयर इज प्रॉब्लम इन दैट सॉफ्टवेयर, वो तो रिमोट लोकेशन से हो सकता है. तो मेन क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर दैट गुड्स आर नॉट नीडेड ओवर हियर, बट आर यू गेटिंग? इट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली. आर यू गिविंग द टाइटल ऑफ दैट कार? नहीं. आर यू गिविंग? नहीं. सप्लाई तो सर्विस ही हो रही है ना. दैट इज व्हाट सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली. So therefore, when electronic means you are supplying the services, suppose manufacturing में default आ रहा है, what default आ रहा है? तो I will say कि मेरा जो manufacturing है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से लिंक होकर मेरी पूरी मशीन चल रही है. तो रिमोट लोकेशन से he will do what? He will adjust the कि सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत है, तो गुड्स से रिलेटेड ही तो he is providing the service ना. मेरी बड़ी मशीन है, छोटा सा उसमें सॉफ्टवेयर है जिसके कारण ये मशीन पूरी क्या हो रही है? The machine is running. Remote location say he is doing the correction in the software. So basically where that goods is at the time of providing the service, that only matters. क्योंकि किसी भी सिचुएशन में चाहे 100 साल आगे भी चले जाओगे, वर्चुअली रिपेयर तो कभी नहीं हो पाएगा. कि यहाँ बैठ के मैं वहां पे कैसे हाथ लेके आऊंगी मुझे भी नहीं पता. आर यू गेटिंग? समझ में आया? So where physically needed, तो where the goods are, तो यहाँ पे लिखना है service actually performed. बट इसका there are many times a place where जरूरत ही नहीं है फिजिकल की, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा. In such a case, the place of supply is location where goods are situated at the time of supply. तो मैम डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि in this case physically perform में you will check कि where the goods are. अगर मैं ये रूल पता है, ये सर्विस एक्चुअली परफॉर्म यहाँ पे लगा दूं, तो दैट मीन्स इफ यू आर इन पुणे एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू दुबई, और इफ यू आर इन दुबई प्रोवाइडिंग सर्विस इन पुणे, जहां पे तुम प्रोवाइड कर रहे हो ये तो वो हो जाएगी, चेंज हो जाएगा. तो इसलिए बोल रहे वेयर द गुड्स आर, गुड्स को चेक करो कि लोकेशन ऑफ गुड्स क्या है. आर यू गेटिंग दिस टू थिंग्स नाउ? सो मैम पर्सन के केस में, इन केस ऑफ पर्सन सेक्शन नंबर 12, it was you have to be physically present.
तुमको क्या होना था, फिजिकली प्रेजेंट होना था. अगेन person need to be physically present, then also service actually performed. Goods ma'am physically present, service actually performed. Is that clear अभी तक? But ma'am person के केस में I am here, मैं यहाँ हूँ, मैं भी तो रिमोट लोकेशन से तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ. I am also providing the service from a remote location. मेरे लिए तो रिमोट ही हो गया ना, मैं कहीं और तुम कहीं और, मैं यहाँ तू कहाँ, वही बात है ये तो. In such a case ma'am, have they given anything? No. General rule will be applicable. तब क्या हो जाएगा, जनरल रूल क्या होगा एप्लीकेबल, बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर. तुमको सिर्फ यहाँ पे मेरे सामने होना है. आर यू गेटिंग? इसका और लेते हैं, डॉक्टर को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आजकल चलता है ना. देयर आर मेनी एप्स, प्रोटेक्टो करके, ऐसे बहुत सारे देयर आर एप्स वेयर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फ्रॉम डॉक्टर यू कैन टेक. Are you required to be present physically to the doctor for general checkup? No, you are not required to be. So in such a case, general rule will be applicable for online wala part. Are you getting? Aya? Now, ma'am, goods के case में तो specifically बोला ना. In case of goods, if physically present, then service provided. Ma'am, if it is remote location, then location of good at the time service is provided. तो बेसिकली वहां पे सर्विस प्रोवाइडेड, कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक तो वही हो रहा है ना, फिजिकली गुड्स जहां है, और यहाँ स्पेसिफिकली बोला जहां पे गुड्स हैं वो चीज को चेक करो. आर यू गेटिंग? डन. सी इफ आई एम यूजिंग मोर ऑफ हिंदी एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, रिमाइंड मी. ठीक है, somewhere you find कि unable to understand, I will repeat in English again. I am trying कि जितना मिनिमम यूज हो, बट स्टिल इफ यू फाइंड यू कैन टेल मी. प्रोवाइडेड फर्दर, ओह, और फर्दर दे हैव प्रोवाइडेड समथिंग. अब क्या फर्दर है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज अप्लाई इन केस सर्विस सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स टेम्परली इंपोर्टेड, टेम्पररी बेसिस पे इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर. Temporary basis पे they import into India for repair or treatment and exported after such repairs without being put to use in India, other than that which is required for such repairs or treatment or process. So basically this is USA, this is India. Suppose there is import of goods in India. Why you have imported goods in India? Because on this goods there is some repair or treatment that you have to do. कुछ repair वगैरह करना था तो हमने import करवा लिया. Now, is repair a service? Yes, repair is supply of service. That is okay. One person outside India, one person in India, section 13 will be applicable. That is also okay. But after repair, you will again send the goods back to the place from where it has been imported. वापस उसको भेज दोगे. तो can I say it is temporary import? This is not a permanent import. This is temporary. Can I say? Yes, ma'am. This is a temporary basis का import. But यहाँ बोल रहे if you import and without use, you have to send it back without being put to use. Without being put to use. अब मुझे एक चीज बताओ, क्लियरली मेंशन विदाउट बीइंग पुट टू यूज, उसको वापस क्या कर देना, भेज देना. जहां से आया सेंड इट टू द प्लेस वेयर इट हैज बीन, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन इंपोर्टेड. नाउ माय थिंग इज, सपोज आई डू इंपोर्ट. ठीक है, मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, रिपेयर किया, आई हैव डन द रिपेयर. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अ लैम्प. ठीक है, मैंने इसको रिपेयर वगैरह कर लिया इंपोर्ट करने के बाद. अब उसको चेक करने के लिए तो आई हैव टू यूज इट ना एटलीस्ट वंस. एक बार तो मैं चेक करूँ कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है. तो व्हाट विल हैपन, यूज तो करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज इट. विदाउट यूज करे अगर तुम भेज दोगे एंड इफ इट इज स्टिल नॉट रिपेयर्ड, तो इज दैट लॉजिक? कोई लॉजिक है क्या उस चीज का? सो क्लियरली क्या मेंशन किया, देखो ना लाइन, विदाउट बीइंग पुट टू यूज. ठीक है, other than, are you getting? Other than that is required for the repair or treatment. That means test run chalega. For repair or treatment, whatever is needed, utna काम तो you can do, utna कर लो. But what do you mean by put to use? Commercial basis के लिए do not use it.
Do not use it for commercial basis. Are you getting? टेस्ट रन करना है कि एटलीस्ट वो चल रहा है या नहीं चल रहा, देख लो. बट कमर्शियल बेसिस पे गुड्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग दोज गुड्स, देन इट विल बी परमानेंट. टेम्पररी हट गया वो, नाउ इट हैज बीन नॉट टेम्पररी. इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर ले. पहले टेम्पररी का मतलब समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा इलाबरेट करते हैं. सबसे पहले सपोज दिस आर द गुड्स. ये गुड्स को हमने क्या किया, दिस गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इन इंडिया. ठीक है, हमने इंडिया में इन गुड्स को क्या कर लिया, इंपोर्ट किया. सो आफ्टर इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो रिपेयर करना था, दैट रिपेयर वी हैव डन. जो भी रिपेयर करना था, व्हाटएवर रिपेयर वाज नीडेड, वी हैव डन द रिपेयर. सो इंटेंशन वाज टेम्पररी. इंटेंशन क्या था, टेम्पररी बेसिस पे, कि टेम्पररी बेसिस पे वी आर इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर. नाउ suppose instead you don't have to use this, सिर्फ टेस्ट रन वगैरह चलेगा, whatever needed for the repair, whatever needed for process उतना ही करना. टेम्पररी का मतलब क्या था, टेम्पररी बेसिस या विदाउट यूज का मतलब क्या था, विदाउट यूज. द मीनिंग वाज विदाउट यूज मतलब टेस्ट रन ओके, बट नॉट कमर्शियल नेचर के लिए. नाउ सपोज ये मशीन को आई हैव यूज्ड, करा मैंने यूज, टेस्ट रन नहीं, मैंने प्रॉपर उसको यूज कर लिया ओनली वन टाइम. ओनली वन टाइम प्रॉपर यूज कर लिया कि इट इज हैविंग टाइम, अभी इंपोर्ट करने में वी हैव टाइम, लेट अस यूज दिस मशीन एंड वी हैव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आउट ऑफ इट. एंड ये गुड्स को भी क्या कर दिया, सेल कर दिया. तो नाउ एज यू हैव यूज्ड द गुड्स, as you have manufactured goods, और ये गुड्स को तुम सेल भी कर रहे हो, that is you are using it for commercial purpose, तो is it without use now? अब ये without use नहीं रहा. Temporary तो अभी भी है, right now also it is temporary, we will be sending it back. Temporary तो है, it is temporary, but now it is not without use. In such a case when it is now not without use, अब क्या हो गया, क्या इसमें कोई कंडीशन वॉयलेट हो गई? यस मैम, ये विदाउट यूज वाली कंडीशन क्या है, ये वॉयलेट हो चुकी है. बिकॉज देयर आर टू कंडीशन, टेम्पररी प्लस विदाउट यूज. इट शुड बी इंपोर्ट टेम्पररी प्लस विदाउट यूज, दोनों चीजें होनी चाहिए थी. ओके, तो टेम्पररी प्लस विदाउट यूज, इसमें से विदाउट यूज गॉन. नाउ शुड आई अप्लाई सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 3? ना, अब you cannot apply. Now you have to move to general rule, because specifically in your section number 13 subsection 3 temporary plus without use दोनों cover है. अगर ये गया तो भी move to general rule. And suppose instead of temporary it is by default permanent, you have imported, permanent ही import किया था तुमने, तो permanent basis पे you have imported, in such a case also it would be general rule. Are you getting? But एक चीज बताओ, permanent basis पे a goods that have been imported, you are importing permanent basis पे any goods, तो वो तो already कहाँ cover होना चाहिए, that is import of goods. And when it is import of goods, that is already covered where, already covered है तुम्हारा custom में, तो there is no logic of applying this place of supply here. वैसे भी तुमको रिवर्स चार्ज में वहां पे पे करना ही है, कस्टम में लेते. गेटिंग? मैम ये सारे एनालिसिस लिख नहीं रहे इस बार हम, पिछली बार तो एक एक के बाद लिख रहे थे, बिकॉज व्हेन वी विल बी क्रिएटिंग दैट चार्ट, फिर से वी विल रिवाइज एंड देन वी विल राइट ईच एंड एवरी लॉजिक. ओके, तो एक साथ सारा लिख लेंगे उसके लिए. तो अभी हम क्या किया, गुड्स. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज गुड्स शुड बी फिजिकली प्रेजेंट, देन इट वाज रिमोट लोकेशन से गुड्स हैव बीन सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड, देन इट वाज अभी जो हमने किया कि temporary for repair as well as without use, that goods have to be sent back to the place from where it has been imported. These three cases only in respect of goods. But when वो person के respect में तो कोई cases ही नहीं थे when it was section number 12. So are you getting the छोटा सा difference? There person, here goods, but either goods के case में भी 3 cases have been given, but उधर सिर्फ क्या था, person. The person should be present where grooming, fitness, beauty treatment, plastic surgery, etc. provided. I am now
मैम ये क्या हो गया? सर्विस सप्लाइड टू इंडिविजुअल, सर्विस सप्लाइड टू इंडिविजुअल, अभी तो मैम गुड्स का बता रहे थे ना. नाउ सर्विस सप्लाइड टू इंडिविजुअल, सर्विस टू इंडिविजुअल, physical presence is needed. Okay, is it cut copy paste now? Yes. Service supplied to individual, represented either as a recipient of the service, उसको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग. मैम ये ऑन बिहाफ ऑफ कैसे? ऑन बिहाफ कैसे? ऑनलाइन क्लासेस यू आर टेकिंग, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस यू आर टेकिंग, इफ कंसिडरेशन पेड बाय फादर, so is father sitting here and taking the classes of GST? No, ma'am. इस केस में on behalf of recipient, for me recipient is your father, right? Because consideration paid by father, but on behalf of recipient you are taking the service. बात बनती है ना? तो either taking the services. अब यहाँ देखो ये तो मैम ऑनलाइन ही होगा ना. अरे ऑब्वियसली ऑनलाइन ही है यहाँ. Why? Because section number 13, either one is outside India, recipient or supply, anyone is outside India. तो यहाँ तो है ही ऑनलाइन. By default ये ऑनलाइन की बात करें, फिजिकल प्रेजेंस की बात भी होगी, बट यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट भी क्या है, ये ऑनलाइन भी है ना. आर यू गेटिंग? क्योंकि एक बाहर है तो वहां से आके तुमको थोड़ी ना रोज जीएसटी की क्लासेस देंगे, अप डाउन थोड़ा ना करेंगे वो फेस टू फेस के लिए. आर यू गेटिंग? तो फिर से प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर फिजिकल प्रेजेंस इज नीडेड फर्स्ट, either to that person you are providing or on behalf of that person you are providing, but तुम्हारा होना जरूरी है, जिसको सर्विस लेना है, you should be present over there. अब इस केस में क्या होगा? तो B वाला भी है एंड B के लिए सिंपली दे हैव गिवन हियर क्या, सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म. तो अच्छा मैम सर्विस के लिए दोनों जगह सेम है क्या? यस, there also service actually perform, here also service actually perform, for person. Ma'am for goods उधर कुछ मेंशन ही नहीं है सेक्शन नंबर 12 में, nothing about goods, but here in goods physical present, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, रिमोट लोकेशन से सर्विस, देन टेम्पररी वाला. दिस 3 cases have been given. तो कैन आई से पर्सन वाला कट कॉपी पेस्ट, राइट? पर्सन वाला तो कट कॉपी पेस्ट. हियर एक्स्ट्रा 13 में एक्स्ट्रा क्या दिया है? गुड्स के रिस्पेक्ट में. तो व्हेन आई विल बी मेकिंग माय नोट्स, तो इन केस ऑफ मेकिंग द नोट्स कैन आई राइट हियर, in case of your first, that is what related to person, first of all we will all obviously writing कि पूरा क्या है, अभी सिर्फ बता रही हूँ. in case of person service, तो can I write here service के लिए दोनों keywords, then here only that is section number 13 they have given goods also, तो goods के 3 cases and then write the answer. So there is comparison, common वाला यहाँ पे आ जाएगा service, keywords will be here. जो एकदम सेपरेट है, नॉट गिवन इन सेक्शन नंबर 13 और नॉट गिवन इन सेक्शन नंबर 12, उसको उसके स्पेसिफिक सेक्शन के उधर ही नीचे लिख लेंगे. दैट इज ओनली गिवन, गुड्स इज गिवन ओनली इन सेक्शन नंबर 13, बट व्हेन इट इज रिलेटेड टू सर्विस टू अ पर्सन, ये रहे उसके कीवर्ड्स. गेटिंग? समझ में आया अभी? तो दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट वाला पार्ट ओनली. अब आते हैं किस पे? ओहो, मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ ये वाली सर्विस को. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी, was it there in section number 12 also? Service directly related to immovable property. Yes, the same. Directly in relation to immovable property that include service. ये भी था, एक्सपर्ट, ई-स्टेट एजेंट, सप्लाई अकोमोडेशन ऑफ होटल, गेस्ट हाउस, बट वहां पे अलग अलग पॉइंटर्स थे, देयर वर सेपरेट पॉइंटर्स. यहाँ सब कुछ इंक्लूड कर दिया. राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन वर्क, एनीथिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. आर यू गेटिंग? बट मैम ये डिफरेंस क्या है? रिसिपिएंट, ये मैम रिसिपिएंट है, ये कौन है? ये सप्लायर है. दिस इज इन इंडिया, दिस इज आउटसाइड इंडिया. आर यू गेटिंग?
ये एक इंडिया में है, एक आउटसाइड इंडिया है. अ पर्सन वन आइदर रिसिपेंट इन इंडिया और व्हाट सप्लायर इन इंडिया. कोई एक तो आउटसाइड इंडिया होगा. बट व्हेन इट वाज सेक्शन नंबर 12, ये भी इंडिया में, ये भी इंडिया में, सर्विस वाज मूविंग आउटसाइड इंडिया. रिमेंबर? सो दिस इज व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी. कैन आई राइट हियर? वो जो अपन ने कॉलम क्रिएट किया, सिंपली व्हाट वी विल बी राइटिंग, वो सिंपल कॉलम लिखेंगे हम. Immovable property intended to be located or located, intended to be located or located outside India. Is that simple? दोनों में सेम है. ठीक है. Then again moving to next one. Place of supply. अरे ये तो मुझे याद ही नहीं है कि उसमें था या नहीं, तुम्हें बताओ. Place of supply of service supplied by way of admission to culture, admission to scientific education event. Is it admission to an event of premises that we have already done in section number 12? Yes, तो वहां पे क्या था? event or parking कहीं Event is actually held. हाँ, तो क्या ये भी वही है? Event is actually held. Is that same? मैम कुछ तो कम हुआ, मजा ही आ गया. कुछ तो ऐसा हुआ कि याद नहीं रखना पड़ेगा. तो it is same where the event is actually held. चलो और आगे बढ़ते हैं. Wait for it. The place of supply of following service shall be location of supplier of the service. It is supplier of service का location. अरे ये क्या है मैम? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग कंपनी. मैम ये तो सेम है, वहां पे भी सेम था. बट वहां था इफ यू हैव रेसिपिएंट का एड्रेस तो लोकेशन ऑफ दैट. बट हियर एज वन इज आउटसाइड इंडिया तो उसके एड्रेस का करेंगे भी क्या? और इफ सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया तो भी क्या मतलब है? वैसे भी आरसीएम में आ जाएगा. आर यू गेटिंग? तो इसमें वो सिंपली क्या बोल रहे हैं कि इफ बैंकिंग सर्विसेज आर देयर, they are providing what banking service. If I am providing banking service और बैंक उधर बैंक या तो इंडिया में होगा, बैंक या तो कहाँ होगा? आउटसाइड इंडिया. Either the bank would be in India or bank would be outside India. Now see, this is bank. Ma'am, bank is outside India. So that is means I am importing. और जब हम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, if we are importing the service, वो तो क्या आता है? RCM में. That is where under RCM. But ma'am, if bank is in India and we are providing the service outside India, so in such a case, location of supplier of the service. Are you getting? That is what location of supplier of the service. तो supplier को हमको क्या करना है? फिर taxable करना है. मैम ये क्या है? Intermediary service. वहाँ तो stock broker service था. Are you getting? Stock broker was also a kind of intermediary service. So instead of writing stock broker, intermediary means any type of intermediary, but specifically in section number 12 it was only and only stock broker. यहाँ पे all types of intermediary service have been there. किसी भी तरह की intermediary service. That means suppose out of India मुझे कोई service क्या है लेनी है, तो वो जो supplier है, supply wants some intermediary also for that. तो वो intermediary service is also included. Suppose from outside India, I want certain kind of service, कोई software वाली service I want, but वो software वाली service they have to provide to me. They need Wi-Fi also. Wi-Fi की service कोई और provide कर रहा है और अच्छे level पे इसको लेते हैं. Suppose outside India का Discovery Channel हमको यहाँ play करना है in India. Discovery Channel क्या हमारा है? नहीं, out of India, India में play करना है. तो suppose for that हमने परचेस किया right to play Discovery Channel in India. What you will need? Transponder. Something is needed to play in India, and उसको भी intermediary की सर्विस लेनी पड़ रही है. मुझे intermediary की सर्विस लेनी पड़ रही है to get that channel played in India. So any kind of intermediary service. But when it was section number 12, it's not any kind of intermediary service. It is specifically stock broker की service they have included. Are you getting? That was specific stock broker service. और कोई service? Hiring service, means of transport if you hire. Hiring the means of transport including yacht. But exclude this aircraft vessel if you hire for only 1 month.
अगर 1 मंथ के लिए हायर कर रहे हो तो एक्सक्लूड है। फिर से पढ़ते हैं, सर्विस ऑफ हायरिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। In means of transport, everything is included, but what is not included, if up to 1 month you are hiring, तो मैम ये 1 मंथ का क्या करे, गो टू जनरल रूल। यहाँ पे तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू जनरल रूल। तो मैम when it comes to my section number 12, we have this banking company, we have intermediary, but specifically only stock broker. But when it comes to this, we do not have in section number 12. Only in section number 13 we will find this. So how we will frame the chart? Comparative हमको frame करना पड़ेगा. Are you getting? Here the meanings have been given. Ma'am, what is this? Place of supply of service of transportation of goods. Transportation of goods, section number 12. Yes. Transportation of goods was also there. Ma'am, transportation of passenger was also there. Ma'am, service on board was also there. Same. Are you getting? Same. So, ma'am, when it is transportation of goods, but it is not mail or courier. Not talking about mail, not talking about courier. क्या ये same नहीं है? Place of destination. When goods are sent outside India, जब मैंने किसको भेजा था gift? जया को, लक्ष्मी को. In such a case, destination of goods we were checking. तो ये भी तो वही है, place of destination of goods. क्या ये same है? Yes, ma'am. This is also same. Ma'am, what about passenger transport? Embark for continuous journey. Is it same? Embark for continuous journey. Ma'am, what about on-board services are provided? First scheduled point of departure. First scheduled point of departure. Understood? This is entire explanation. ये एकदम बड़ा है. This is an entire explanation. But can I say, primarily एक वो IDR वाला service that I have left, OIDAR, Online Information Database Access Retrieval Service, OIDAR, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो lots of comparison is there. Can I again start? मैम वो goods वाला है, yes, both places goods वाला is there. मैम passenger, that is also there. मैम goods भी है, passenger भी है, on board service वो भी common है. मैम immovable property का service भी common है. मैम वो person को service provide करते, इधर भी person को service we are providing same, but here goods वाला something different. Ma'am, banking and financial service, stock broker service, intermediary service. Then यहाँ पे hiring the means of transport, including yacht also, but excluding if vehicle, vessel or aircraft hired up to 1 month. Are you getting? Can we start with the comparison? अगर वो मैंने याद है क्या बोला था? If section number 12 अच्छे से हो गया, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर 13 यू विल फाइंड की कंपैरिजन चल रहा है. आर यू गेटिंग? चलो, फॉर 5-10 मिनट्स नाउ रीड ओनली द पीडीएफ फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल से ये सेक्शन नंबर 13 का एक बार रीडिंग कर लो, देन वी विल मूव टू OIDAR वाला सर्विस. ओनली सेक्शन 13.
Done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we have to complete some pillars here. कुछ फिलर्स हैं जो अभी हमने इसमें नहीं किए, Yes. जैसे आप एग्जाम्पल्स बोलते हो तब आके डायग्रामेटिक ऐसे बोलो मैम, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अरे डायग्रामेटिक आई अंडरस्टैंड, बट एवरी सिंपल कॉन्सेप्ट थ्रू डायग्रामेटिक इज नॉट पॉसिबल ना। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेम है। नहीं मैम, ये सिंपल का नहीं, थोड़ा आके क्लस्टर का रहता है, ऊपर ऊपर जाने वाली चीज है, वो डायग्रामेटिक से बोलना है। कौन सा वाला? बिकॉज ये वाला स्पेसिफिकली इट वाज जस्ट अ कंपैरिजन, ठीक है? क्योंकि अगर अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंसिव तो है हमारी बात, मैं डायग्रामेटिक करने में मेरे को कभी दिक्कत नहीं होगी, बट अंडरस्टैंड वो सिंपल चीज जो हम यूं ही समझ सकते हैं उसको कैसे हर चीज को ड्रॉ करेंगे? आर यू गेटिंग? तो टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम तो जाएगा। यस मैम, बट आके मुझे आगे सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स के वो कैसे मुझे ऐसा लगा मैम। सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स नहीं आया तुम लोग को? नहीं वैसे नहीं मैम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मुझे और एक ऐसा सोचा मैम। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? इज दैट क्लियर? गुड्स वाला तुम लोग को क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट कि गुड्स में फिजिकल प्रेजेंस क्या होता है? Ma'am, बोलो। transportation of goods, why mail and courier is excluded? क्या कहाँ पे? In case of Ah, section 13. transportation of goods, why mail and courier excluded? कान खींचूं? Why? In section number 12, remember? Mail and courier outside India भी तो जा रहा था. Are you getting? And if someone is providing from outside India mail and courier, तो उसका हमको क्या करना देख के? वहां तो सिर्फ हमको घर पे मिल जाएंगे ना गुड्स। Are you getting? Mail and courier क्यों exclude किया बताओ? सेक्शन नंबर 12 में when it was mail and courier, तो वहां पे they have covered ना, whether courier in India, जय को भी दिया, लक्ष्मी को भी दिया, तो ऑलरेडी मेल एंड कुरियर इंक्लूडेड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेल एंड कुरियर इन सेक्शन नंबर 13, ऑलरेडी 12 में तो बोल दिया ना कि आउटसाइड इंडिया इट इज गोइंग। आउटसाइड इंडिया वाले को ही तो वो मिल रहा है, तुम आउटसाइड इंडिया हो, यू आर नॉन रेसिडेंट नाउ, तो इफ आई एम गिविंग अ गिफ्ट तो वो तो ऑलरेडी सेक्शन नंबर 12 में दे हैव कवर्ड ना। तो सेक्शन 13 में क्या वो फिर से आएगा? इट विल नॉट कम अगेन। लेकिन मैम ऐसा हो जाए वहां से कोई गिफ्ट मेरे लिए आ रहा है, तो सप्लायर ऑफ द सर्विस ऑलरेडी आउटसाइड इंडिया। अब गिफ्ट के लिए, गिफ्ट पर्सनल नेचर, नो कंसिडरेशन, नथिंग, ना वो सप्लाई ना वो कुछ, तो हाउ यू विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट मेल एंड कुरियर है? इसको फिर से समझा देती हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। समझो, गिफ्ट है, ठीक है, दिस इज व्हाट गिफ्ट, ठीक है। नाउ दिस गिफ्ट, ये पर्सन जो भी ये सर्विस दे रहा है दैट इज मेल एंड कुरियर इज आउटसाइड इंडिया। दिस आउटसाइड इंडिया का पर्सन जो मेल एंड कुरियर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया। नाउ दिस गुड्स आर कमिंग टू इंडिया, यू एज द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स। नाउ लक्ष्मी सेंड समथिंग फॉर मी, ठीक है, पहले मैंने भेजा था, वो मुझे भेज रही है, सो शी इज वेयर इन दुबई, वो वहां से मेरे लिए क्या भेज रही है? गिफ्ट। गिफ्ट, फोकस ऑन वर्ड गिफ्ट, मेल एंड कुरियर, मेल एंड कुरियर गिफ्ट, ठीक है। मैम मेल एंड कुरियर क्यों बोल रहे हो? अगर सपोज करो स्टॉक हो गया तो, अरे बाबा इफ इट इज स्टॉक तो ऑलरेडी कस्टमर परचेस ऑफ गुड्स इज देयर, वो अलग चीज है। ये मेल एंड कुरियर फॉर पर्सनल नेचर दे आर टॉकिंग। तो मैम अगर गिफ्ट है, गिफ्ट में मुझे तो नहीं लगता लक्ष्मी विल चार्ज समथिंग फ्रॉम मी, ठीक है, तो ये गिफ्ट है। इज इट कंसिडरेशन? मैम इट इज नो कंसिडरेशन। Without consideration, I am receiving something that is import of actually first of all तो वो goods। मैम अगर import of goods की बात करें तो goods तो आप छोड़ ही दो, because that is not section number 13 is about service, ठीक है, तो goods की बात छोड़ दी। But the person who is providing this service for transportation of goods, ये जो service provide कर रहा है, already the supplier is outside India, ठीक है। एंड लक्ष्मी ने जब मुझे ये गुड्स भेजा है, लक्ष्मी ने जब मुझे गुड्स भेजा है, लक्ष्मी वांटेड कि दिस गुड्स शुड रीच इन इंडिया, तो सर्विस लेने वाला भी तो आउटसाइड इंडिया ही है,
Lakshmi is also outside India. लक्ष्मी भी आउटसाइड इंडिया, सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो आउटसाइड इंडिया. तो हम वहां का यहाँ देख के करेंगे क्या? आर यू गेटिंग? हम क्यों देखेंगे? देयर इज नो सेंस ऑफ इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर. क्या ये समझ में आया? अगर बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहे हैं, अब लक्ष्मी इज लाइक नहीं, मैं इंडिया के वालों के कोई ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लूंगी. इज दैट लॉजिकल? रैशनली नहीं है वो तो. दूसरा, आई एम सेंडिंग गुड्स फ्रॉम हेयर टू आउटसाइड इंडिया. वो कहाँ कवर किया था हमने? Already covered in section number 12. So for specific that reason mail courier excluded. ठीक है, आया? अब एक बार for the satisfaction goods का भी कर ही लेते, ड्राइंग खेल लेते एक बार. ठीक है, चलो. But understand one thing, when it is simple and we are investing time here ना, तो वो तुम्हारी बैच एक्सटेंड हो जाएगी, 100% हो जाएगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा फैक्ट. अब तुम खुद ही देखना कितनी सिंपल बात थी, तो तुम्हें लग रहा है बहुत पता नहीं अलग सा कुछ है. अगेन टॉकिंग अबाउट द गुड्स. कहाँ है हमारे गुड्स भाई? दिस आर माई गुड्स. ठीक है, ये हो गए हमारे गुड्स. नाउ दिस गुड्स नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट. ये मेरा जो गुड्स है, दिस इज माई गुड्स. अब इन गुड्स का क्या होना चाहिए? फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए. तो सपोज ये क्या है हमारा? शॉप पे. ये शॉप के काउंटर पे आने चाहिए, रखे होने चाहिए शॉप के काउंटर पे ये गुड्स, तब जाके हम उसमें क्या कर पाएंगे? कोई रिपेयर कर पाएंगे. तो फॉर एन एग्जाम्पल एज आई हैव टेकन की लैपटॉप शुड बी एट द काउंटर ऑफ द शॉप, तब जाके हम रिपेयर करवाएंगे. तो वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड? सर्विस एक्चुअली प्रोवाइडेड. तो कहाँ सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड हो रहा है? फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है गुड्स का? Where the goods are physically presented, वहीं पे actually perform हो रहा है. That is place of supply in respect of goods when actually present. समझ में? Second, in my second example, again it is my laptop. Again what? It is my laptop. Now, suppose in my laptop, what has happened? Software I give you. मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर दिया. अब वो सॉफ्टवेयर क्या हो रहा है? तुमसे इंस्टॉल नहीं हो रहा. ठीक है, और देयर इज एनी प्रॉब्लम यू फाइंड कि हमसे हो नहीं रहा, तो इन सच अ केस व्हाट यू विल डू? वुड माय टेक्निकल एक्सपर्ट विल बी कमिंग टू यू? नहीं, वो तो नहीं आने वाला. आर यू टेकिंग द लैपटॉप टू हिम? नो मैम, वो भी नहीं होने वाला. देन व्हाट ही विल डू? वो भी क्या करेगा? अपना लैपटॉप ओपन करेगा एंड एनी डेस्क पे तुमको लेगा कि चलो तुम्हारा क्या दे दो मुझे, एनी डेस्क पे पीसी दे दो. नाउ एनी डेस्क मतलब can I say electronic mean? Can I say remote location? Remote location से he will be providing. तो अब remote location से provide कर रहे हैं, but you have to check where the goods are at the time of supply of service. Crux तो वही है कि सर्विस करते वक्त goods कहाँ हैं? तो यहाँ पे है goods. Suppose the goods are again where? In Jaipur. तो मैम goods कहाँ हैं? Goods here. So where the goods are actually at the time of supply of service. But इधर के केस में actually perform कहाँ की थी सर्विस? क्योंकि goods यहीं पे आ गए थे, हम जहां perform कर रहे हैं वो देख रहे हैं, और इस केस में goods कहाँ है वो देख रहे हैं. यहाँ पे परफॉर्मेंस का प्लेस है, यहाँ पे goods जो है situated at the time of service वो प्लेस है. अंडरस्टूड मैम? लास्ट तो मैंने बताया था ना, टेम्पररी वाला तो डायग्रामेटिक था ना. ठीक है, अंडरस्टूड दिस? इतना सिंपल था ये. या तो तुम चले जाओ सर्विस लेने के लिए या तो गुड्स को दे दो, ऐसा है. आ गया पूरा? चलो अभी पहले ये हो गया हमारा. कहीं कहीं पे यू विल फाइंड कि दिस हैज बीन रिटर्न, ये मोर देन वन लोकेशन, दिस हैज बीन रिटर्न. उसको अभी मैं थोड़ा होल्ड करके रख रही हूँ. Other than that, have we covered everything? Yes. Other than that, this is just an definition. Just read it. उससे ज्यादा नहीं. They will not ask you the definitions. ये वाली definition are not important. अभी हम आते हैं specifically on online information database access and retrieval services. Online information database access and retrieval services shall be location of recipient of the service. It shall be location of the recipient of the service. Now, what is ma'am OIDR? अब हर बार I cannot repeat the overall name, so it will be what? OIDAR वाली service. पूरा ध्यान अब इधर, सिर्फ इधर.
ठीक है, चलो इधर आओ। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, अच्छा, person receiving the service shall be deemed to be located in taxable territory if two following, any of the two non-contradictory conditions satisfied. There are lots of conditions over here. Only two conditions to be satisfied. सिर्फ दो conditions satisfy करनी है। मैम किस चीज के लिए? For what two conditions to be satisfied? For the purpose of this subsection, person who receives the service, that is this service, OIDR wala service, deemed to be located in taxable territory, अगर इनमें से कोई भी two conditions are satisfied. तो that means OIDR वाली सर्विस क्या है? That I don't know, अभी तो नहीं पता, ठीक है। If this OIDR service you are taking and it will be deemed that you are in taxable territory if two condition, any two conditions are fulfilled. मतलब पहले तो ये समझना है कि what is OIDR and why it is deemed, मान लिया जाएगा कि that you are situated in taxable territory. So that also two conditions I have to understand and why it is deeming वो भी समझना पड़ेगा. Then these are all the conditions. तो अब हम ये OIDR वाली सर्विस है क्या, पहले वो समझ लें। अच्छा एक चीज बताओ, YouTube पे अगर तुम कुछ भी, प्ले स्टोर तो सबके पास है जीवन में, प्ले स्टोर इज विथ एवरीवन इन द फोन, ठीक है। तो प्ले स्टोर अगर तुम्हारे पास सबके पास है तो टेल मी, अगर कोई भी तुम क्या करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो इज इट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज? वही तो है ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। गूगल क्रोम पे you can type anything and just बोल के देखो, are you getting? You will get online information का access, online information का access. If you want to retrieve, you can again retrieve the thing. Can I say online information database का access and retrieval services? Can I say using your Play Store, Facebook, Instagram, तुम्हारी useful information I am telling you, useful applications है तुम्हारी। फेसबुक बिना काम नहीं चलता, इंस्टाग्राम बिना कैसे काम चलेगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स एक बार नहीं देख लो, वीडियो शॉर्ट्स, तो कैसे काम चलेगा? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना? नहीं मैम ऐसा थोड़ी ना। तो दिस इज व्हाट, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन क्या करो, डाउनलोड करो। इज इट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस से एक्सेस किया, रिट्रीव कर रहे हो तुम सारी सर्विसेज, that is online information database access retrieval service. YouTube से जरूरी है इंडिया के लोगों का ये वीडियो देखते हो? नहीं, फॉरेन के भी लोगों का हम वीडियो देखते हैं। इन शॉर्ट, YouTube has a database. YouTube has a what? Database. And when you write the keywords, YouTube से तुम अगर सपोज करो तुम्हें किसी भी फैकल्टी का लेक्चर देखना है, you want to watch the lecture of any faculty, just you type FRCA final May 2023 आ जाएगा, SFM CA final May 2023 कैसे आ जाएगा? They have a database. मैम लेकिन हम May 23 लिखते तभी कैसे आता है? Because when we upload a video, हम लोग को टैग डालने होते हैं। टैग की what student will search, स्टूडेंट क्या लिखेगा और क्या सर्च करेगा, अगर वो टैग्स भी मैच नहीं होते तो फिर वीडियो पॉपअप हेलो मैम। लाइट गई। चलो, सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, YouTube है। YouTube पे वी हैव टू राइट व्हाट द टैग्स, हमको क्या लिखने होते हैं? सारे टैग लिखने होते हैं। इफ माय टैग डजंट मैच ना, तो माय वीडियो विल नेवर पॉप आउट। दैट मींस
यू आर राइटिंग द कीवर्ड्स एंड वो कीवर्ड्स मैच कर रहा है तो डेटाबेस में से यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ ऑल दोज वीडियोस, यू कैन रिट्रीव ऑल दोज वीडियोस. तो आर यू गेटिंग ऑनलाइन सर्विसेज? अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल दिया है. हैव दे टेकन द इमेज ऑफ यूट्यूब? यस. हैव दे टेकन प्ले स्टोर का इमेज? सो आर यू गेटिंग क्लाउड पे एवरीथिंग इज देयर. ऑन क्लाउड यू हैव Facebook, everything is on cloud and you are retrieving those services, you are using these services by being in India. इतनी बात समझ में आ गई? ये है online information database access and retrieval service that you are taking. अब suppose अब्दुल ने भी क्या किया, Zoom ऐप यूज कर रहा है, मैं भी क्या कर रही हूँ, Zoom ऐप यूज कर रही हूँ. डिफरेंस, Abdul also using the Zoom app, me also using. In fact, अभी तो अपन सभी Zoom app यूज कर रहे हैं. Is Zoom app from India? नहीं, ये तो इंडिया के बाहर की है. But are you paying taxes because you are importing the service right to use Zoom? मैंने भी right to use Zoom लिया, I pay for that. ठीक है, I am paying, but you are not paying. क्यों? क्योंकि मुझे अगर 40 मिनट से ज्यादा Zoom app यूज करना है तो I have to pay for that. तो एक चीज बताओ, I am also online information database access retrieval service वाला person who is receiving the service. You are also receiving the service, but this is import of service. हाँ मैम, ये तो import of service है, right to use. Am I getting registered due to reverse charge mechanism? Are you getting registered due to reverse charge mechanism? You are also using it. Ma'am, import of service तुम्हारा without consideration you are using Zoom app. तो मैम विदाउट कंसिडरेशन यूजिंग Zoom ऐप, बट क्या वो विदाउट कंसिडरेशन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? क्या तुमने जब यूज किया तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? नो मैम, इट इज नॉट फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. एंड टॉकिंग अबाउट मी, अभी तुम्हारी बात हुई, अब मैं मेरे पे आ जाऊं, मैं भी तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रही हूँ, बट आई एम पेइंग कंसिडरेशन. तो मैम ये तो होना चाहिए था ना, आपका कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, ये तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, बट किसी को बताएंगे ही नहीं कि मुझे रजिस्टर होने की जरूरत पड़ेगी. क्यों? इंपोर्ट ऑफ सर्विस है मेरा, पहली चीज. एम आई पेइंग कंसिडरेशन? यस. इनफैक्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मैम चीटिंग कर रहे हो? कर रही हूँ, क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं. तो एक्चुअली आई एम रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट क्या मैं रजिस्टर हो रही हूँ? नहीं. तो एक्चुअली इट इज दैट, मतलब यहाँ मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हूँ, लेकिन मैम क्यों फिर आप रजिस्टर नहीं हो रहे? तो अभी यू विल गेट एन आंसर. एक और होता है, ये तो मेरा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मैं इसलिए रजिस्टर नहीं हो रही. ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, मुझे रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. तो दिस वाज द रीजन. चलो आ जाते हैं हम. अब मैम व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड? तुम पे भी तो आरसीएम का आता है, एंड आरसीएम तो विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट है. आरसीएम इज विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट थोड़ी ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की. मैम अभी तो आपने बताया हमारा तो सप्लाई नहीं है, एक्चुअली हमारे लिए तो सप्लाई ही नहीं है. क्यों? वी आर इम्पोर्टिंग विदाउट कंसिडरेशन, बट वो विदाउट कंसिडरेशन किससे होना चाहिए था? फर्स्ट ऑफ ऑल ओन एस्टेब्लिशमेंट और रिलेटेड पार्टी. हमारा तो ना ओन एस्टेब्लिशमेंट और ना ही ये क्या है रिलेटेड पार्टी. इट इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई. व्हेन इट इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है. तो यू आर नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट. तुम कौन हो फिर? नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट हो. तुम समझ रहे हो, वो एक सप्लाई की डेफिनेशन है. एवरीवेयर दैट डेफिनेशन विल फॉलो यू, एंड इफ यू हैव अ ग्रिप ऑन दैट डेफिनेशन यू कैन टीच जीएसटी. बस उस पे ग्रिप चाहिए. ठीक है, तो सप्लाई की डेफिनेशन, हैव यू अंडरस्टूड दैट इंपोर्ट? यहाँ क्या हुआ अब्दुल, समझ में आया? दोनों का फ्लिप करके. सो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी क्या है, व्हाट दे हैव रिटन. फिर से जाना पड़ेगा उधर. यहाँ पे हैव दे रिटर्न, कहाँ चल गया है मेरा ऑनलाइन.
So have they returned? सबसे पहले, if it is OIDR service, it is location of recipient. If the two conditions are satisfied, in such a case, these are all the conditions, or specifically they will write it should not be non-taxable recipient. Non-taxable recipient are not required to pay GST. उनको नहीं देना होता है. हम सबसे पहले तो ये समझाओ, ये OIDR तो आपने समझा दिया. अब कब मान लिया जाएगा वो नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट इंडिया में है? When we will assume that non-taxable recipient is there in India. अब समझो, non-taxable recipient is deemed to be in India. अगर ये conditions fulfill होती है, कोई भी 2 conditions are getting fulfilled. जैसे recipient gives an Indian address through internet. Now you are giving कि मैं Indian address. You are also recipient ना? तुम भी तो online information database access retrieval service use कर रहे हो. Facebook if you install, Instagram if you install, are you giving address? क्या तुम एड्रेस देते हो उस वक्त? सिंपली तुम तो क्या देते हो, अपने जीमेल अकाउंट से उसको लिंक कर देते हो. इफ यू गिव इंडियन एड्रेस या फिर पेमेंट, आर यू डूइंग द पेमेंट फॉर यूटिलाइजिंग इंस्टाग्राम फेसबुक? नहीं. तो या तो तुम इंडिया का एड्रेस दोगे, कोई एक कंडीशन, या फिर इंडिया की क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से यू आर पेइंग, या फिर जो बिल आता है तुम्हारे इंडियन एड्रेस पे आ रहा है. That means can I say this is about consideration? पर तुम्हारे केस में तो कंसिडरेशन ही नहीं है. या तो बिल आएगा तुम्हारे एड्रेस पे, या फिर तुम इंडिया के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अदर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, या फिर कंप्यूटर अदर डिवाइस यूज्ड बाय द रिसिपिएंट हैज आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया. आइदर यू आर हैविंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया. तुम्हारे केस में आईपी एड्रेस इंडिया का, बट इंटरनेट के केस में यू आर नॉट गिविंग इंडिया का एड्रेस, यू आर नॉट पेइंग कंसिडरेशन. मैम, recipient uses an Indian bank account for payment, again for the purpose of consideration. तुम इंडिया की कोई भी चीज यूज करके पेमेंट कर रहे हो, या फिर कंट्री कोड सब्सक्राइबर का इंडिया का है. कंट्री कोड क्या है इंडिया का? व्हाट इज द कंट्री कोड ऑफ 91? ओहो मैम, बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजें तो क्या ही ध्यान रखना. Recipient receive the service through an Indian fixed landline. मतलब कहीं भी इंडिया के थ्रू, इंडिया को यूज करके इंडिया के वहां पे पेमेंट कर, कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल. मैम हमारे केस में तो सप्लाई ही नहीं है. इन योर केस इट इज नॉट सप्लाई, बट दोज हु आर टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, whether for consideration or without consideration, if any of the 2 conditions fulfilled, either bank card address India का, either credit card debit card India का, either you are having billing address India का, या फिर सब्सक्राइबर का क्या है कोड इंडिया का, या फिर क्या हो रहा है that इंटरनेट के लिए एड्रेस यू आर गिविंग इंडिया का, कहीं भी 2 कंडीशन फुलफिल हुआ, यू आर रिसिपिएंट ऑफ इंडिया. तुम टैक्सेबल टेरिटरी में हो इंडिया में, अब तुम नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट नहीं हो. देन इन केस तुम इंडिया के और इंडिया में तुम क्या कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो. Is that clear? Done? अभी क्या ये खत्म हुआ? OIDR not completed. अभी भी OIDR complete नहीं हुआ, अभी भी इसमें फिलर्स है. अब फिलर्स क्या है मैम? OIDR में भी बहुत सारा आएगा, मैनुअल डिपेंडेंस और नॉन मैनुअल डिपेंडेंस. अभी उसको कंप्लीट करेंगे. अब टाइम परमिट नहीं कर रहा है तो कल हम इसको आफ्टर, दैट इज योर संडे को OIDR we will complete. संडे को प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवीजन एंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वाला चैप्टर, दैट्स बहुत छोटा सा चैप्टर है. ठीक है, तो वो मॉड्यूल नंबर 3 से वी विल कंप्लीट. तो एटलीस्ट हमारा एक नया चैप्टर हो जाएगा और इसका रिवीजन भी होगा. ठीक है, चलो.